Good morning. Good morning, sir. Good morning. How are you doing? Fine, sir. We'll just wait for one more minute and then we will start. Okay, let's get started. Okay. So अभी तक हमने क्या क्या किया है? हमने R सर्किट सेपरेटली किया, हमने L सर्किट सेपरेटली किया, हमने C सर्किट सेपरेटली किया. ठीक है. अब हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक साथ एक सर्किट में लगा देंगे और देखते हैं कि तब क्या रिलेशनशिप हमें करंट और वोल्टेज के बीच में मिलती है. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर रेजिस्टेंस लगा दी, एक कैपेसिटर लगा दिया, एक और एक इंडक्टेंस लगा दिया. ठीक है, तो ये तीनों एक में लगा दिए हैं. सोर्स अभी भी हमारी सेम है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. ओके, लेकिन अब हम इसको एक अलग तरह से इस सर्किट को एनालाइज करके देखेंगे, एकदम अलग तरीके से, फेजर डायग्राम यूज करके. हमने फेजर्स पढ़े थे, हर एक सर्किट के लिए फेजर देखा भी था कैसा था. अब हम उस फेजर डायग्राम की पावर देखेंगे कि किस तरह से हम फेजर डायग्राम यूज कर इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. मीनाक्षी, कैन यू हियर मी? मीनाक्षी, okay, so we'll continue. Just a second. Sorry. Uh, okay, we'll continue. So, how are we going to solve this, right? So the first thing we are going to do is we know that the frequency of the current cannot change. That at least we have learned, right? So, and there is a phase difference created by the L and C components. R doesn't create that difference, but we do not know what phase difference will be created when both of them are present together. So let's start by assuming that the current in the circuit is IM. Okay, we still don't know what IM's value is. Sine omega t plus phi. Okay, phi here is the phase difference between the voltage and the current. Okay, we will start with this assumption. Now let's apply the Kirchhoff's law. Okay, the loop law of Kirchhoff. Okay, so from that we will get V minus I R minus L di by dt
which is the voltage across the inductor, minus Q by C, which is the voltage across the capacitor, is equal to 0. The voltages in a loop are 0, right? Now from that, what we will get is V is equal to IR plus L di by dt plus Q by C. Okay. Now we will create a phasor diagram, right? So let's take a phasor in the direction of the voltage. Okay. So the voltage in the resistor here. Okay, the voltage in the resistor and the voltage in the current in the resistor are in the same direction, so we can put the VR here, and this is the current in the resistor. Okay, so this is the I. But understand that the current that flows, right, whichever direction it flows, but the current that flows through R is the same current that flows through C and is the same current that flows through L. So the current in the circuit has to be the same. So this is actually the same current that we have assumed. Okay, so the current through the resistor and through everything else is the same. Okay, so these two are in sync, the voltage across the resistor and the current. Okay, now we know that with the current in the circuit, the voltage in the capacitor is 90° behind. Okay, how do we know? Because we said current in the capacitor is 90° ahead. So the voltage has to be 90° behind. Okay. Similarly, the voltage in the inductor will be ahead of the current. Okay. So let's say this is the voltage in the inductor. Okay. Now, how will we find the resultant voltage? Okay, we forget about the I for the time being. This was only to create a reference point. Now we have VR, we have VL, we have VC, we have three vectors, and they are orthogonal to each other. VL and VC are in the opposite direction. So the net vector we find here is VC minus VL in this direction. Okay, so this is the VC minus VL direction, VC minus VL. And we have VR. How will we add them? We can add them using the Pythagoras theorem, okay, by completing this rectangle. So this is the resulting vector, which is the V. Okay, so what do we get? We get V square is equal to VR square plus VC minus VR, right? Using the Pythagoras theorem. Okay, now we can replace these. So what is VR? VR we know is the length of the vector is IM R. Okay, so we get this. And what is the VC? VC is IM XC. XC is the impedance
is the reactance because of capacitor minus Im into XL. XL is the reactance because of inductor. Okay, we can take Im outside and we get R square plus X minus XL whole square. Okay, so we have got the value of Im, and from this we can calculate the value of Im square. Okay, so we can calculate the value of Im, which is Vm by square root. I have taken the square root on both the sides. R square plus Xc minus XL whole square. Okay, so what have we done here? We have been able to solve a relatively complex circuit with the help of phasors in very few steps. Okay, and it was a lot easier to solve because the angle between these phasors was also 90 degrees. So we could directly use the Pythagoras theorem. That made solving this a lot easier. Okay, now the question is, we are still left with finding out the phi. Okay, so how do we find out the phi? Phi is the phase difference between the V and the I. Okay, so we know this side is Vc minus VL equal to Vc minus VL, and the base is VR. Okay, so we know tan phi is equal to perpendicular upon base. Okay, so Vc minus VL by, okay, which is equal to, we can replace it with IR, IXC and IXL. So what, and Im get cancelled out. So we will get reactance of capacitance minus reactance of inductor by resistance. Okay, so we have been able to find the phase difference. We have been able to find the magnitude of the peak current. Okay, with the help of phasors. This is a derivation you will have to try it yourself. Just by looking at it, it may not be very clear to you. Okay, so you will have to do it with your own hands to understand this. Okay, now look at the tan phi and see what is the sign of phi here. So if Xc is bigger than XL, then phi is positive. It means that the current will be leading the voltage. Okay, and in another ways, the circuit is going to be dominantly capacitive. And if XL is larger than Xc, then the current will be lagging the voltage and the circuit is going to be primarily inductive. Okay, so we have now understood that I leads V by phi. We still use the word leads, although it could be lagging, because if the sign of phi is negative, that would mean negative, will mean that it is lagging. Okay, so plus positive phi means leading, and negative value of phi will mean lagging. Okay, so we will say I leads V by phi.
and accordingly it could be I could be behind V or ahead of V depending on the values in LCR. Okay, so with this we have covered the circuits. Okay, now we are going to move on to the another concept, which is resonance, right? So you have already learned about resonance. You have already learned about resonance. Meenakshi, can you unmute yourself? Meenakshi, sir, can you hear me? I am hearing you, sir. Acha, acha. Okay. I am thought, hearing you. okay, okay. So because there is no response, a lot of students are not there at all. They came, three No, came, but they left. only Meenakshi is here, sir. But she is not responding. I don't know if she is actually there. Meenakshi, at least tell me if you're there. I don't know if she is too shy to say or... Anyway, I think we will continue, right? Yes, sir, you continue. Yes, sir. Okay. So, see, you have learnt about the sound, okay, about the resonance in the sound chapter, okay? So, what was resonance? Resonance was when sounds... Oh, Meenakshi is also dropped out. Mukesh sir. She has dropped down, sir. She is also dropped out. So there's no point continuing. Yes, only I and you are So here. there is no point. See, ये जो LCR वाला सर्किट है, ये आपने ये जो चैप्टर है, ये आपने मुझे बताया था कि ये PCM वालों का तो हो ही गया है. हाँ, PCM वालों का हो गया है और PCB के शायद मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि राजीव सर बोल रहे थे मुझे कि सर आप शुरू से रिवाइज कराओ, आगे मत बढ़ना. उन्होंने मुझे कहा था. हाँ, तो नीरज सर बोल रहे थे, वो राजीव सर की नीरज सर जो है सो AC और EMW करेंगे. और आप अब जैसे मेरी कल क्लास है तो मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिवीजन प्लस न्यूमेरिकल. हाँ, तो यही था प्लान सर. अब बच्चे पता नहीं सर, हमारी क्लास जो अभी है वो 12:20 तक है ना? हाँ, 12:20 तक. अभी 10 मिनट बचे हैं. 10-11 मिनट बचे हुए हैं. तो मैं अपने ग्रुप वाले बच्चों से 12th A के बच्चों से बात करूंगा सीरियसली सर. हाँ, आप एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर वैसे लगभग पूरा ही हो गया है. इसमें ये रेजोनेंस और ऑसिलेशन बताना है, ठीक है? हाँ, रेजोनेंस है, ऑसिलेंस है और फिर वो पैरेलल है, RLC सर्किट भी है ना उसके साथ. और आगे जो है सो 2 डिवाइसेस है, मोटर और जनरेटर. वो इसमें नहीं है ना, इस चैप्टर में नहीं है वो सब. हाँ, AC में नहीं है. हाँ, इस चैप्टर में ना इसके बाद ट्रांसफार्मर है. हाँ, बस ट्रांसफार्मर है, ठीक है? ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा, मतलब कि वो इतना खतरनाक टॉपिक नहीं है. जो मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो ये सर्किट समझना ही है. मेन एक्चुअली क्या है ना सर, जो फेजर डायग्राम, वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन और इसका जो मैथमेटिकल जो एनालिसिस है, that is important to understand. Meenakshi is back, so Meenakshi is back. Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. Okay, okay. So we will continue. We stop. Okay, we'll start. So resonance जो है ना, आपने जो है साउंड में ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? रेजोनेंस कब होता है साउंड में? जब सडनली उसका जो वॉल्यूम है बहुत बढ़ जाता है साउंड का, ठीक है? और साउंड के केस में वो तब होता है जबकि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है,
उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस पे जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो बाहर की बॉडी उसको वाइब्रेट करने की कोशिश कर रही है, वो जो फ्रीक्वेंसी उसको दे रही है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाती है तो बॉडी बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगती है, ठीक है, और बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है साउंड में। लेकिन एलसीआर सर्किट्स में ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है? अब देखिए कि यहाँ पे भी वेव फॉर्म्स हैं, यहाँ पे वोल्टेज और जो करंट है वो एक वेव फॉर्म में चल रहे हैं, राइट। और यदि अचानक से करंट बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये सर्किट अब रेजोनेंस में है, यानी कि उसमें जो करंट है वो उसकी पीक वैल्यू पे पहुंच गया विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। एक हमारे पास एलसीआर सर्किट है, हमारे पास उसमें एक हम वोल्टेज दे रहे हैं, मान लीजिए हम उसको 10 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसकी वोल्टेज ना बढ़ाएं, लेकिन उसकी केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहें। और अगर केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से हमें एक स्थिति आती है जिसमें कि करंट हाईएस्ट पहुंच जाता है, उस पॉइंट को हम रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इन एनालॉजी टू द साउंड, ये तब होता है जब फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है किसी सर्किट की, किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो यहाँ पे फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, जो हमने उसमें वोल्टेज सोर्स लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। अब हम ये मानते हैं कि सर्किट की भी जो है कोई एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओके, ये जब इस फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होंगी उस समय करंट हाईएस्ट होगा। तो ये रिलेशन है साउंड में, रेजोनेंस में और यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अभी अभी हमने देखा कि करंट होता क्या है एलसीआर सर्किट। हमने देखा कि करंट होता है V बाय R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, ओके। तो इसको, इस पूरी क्वांटिटी को हम Z भी बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर। Z का मतलब होता है इम्पीडेंस, ओके। Impedance is what prevents the current from flowing, okay, because this is again the same form as V by R, okay, the thing that prevents the current from flowing. So impedance जो है वो प्रॉपर्टी है एक एलसीआर सर्किट की, जो करंट फ्लो करने से रोकती है। इसमें सब चीजें आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गई, हमारा रिएक्टेंस बिकॉज ऑफ कैपेसिटर भी आ गया, और रिएक्टेंस बिकॉज ऑफ इंडक्टर भी आ गया। इस चीज को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो अब ये वैल्यू तो मैंने जैसा बताया आपको फिक्स कर दी है हमने। तो IM की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जबकि ये डिनोमिनेटर सबसे कम होगा। और ये डिनोमिनेटर सबसे कम कैसे हो सकता है, देखिए जब हम ओमेगा, क्योंकि हम चेंज केवल ओमेगा को कर रहे हैं, तो जो R है वो तो ओमेगा डिपेंडेंट है ही नहीं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जब XC माइनस XL सबसे कम होगा तब डिनोमिनेटर सबसे कम होगा। अब सबसे कम वैल्यू XC माइनस XL होल स्क्वायर की क्या हो सकती है, किसी भी स्क्वायर टर्म की सबसे कम वैल्यू केवल 0 हो सकती है, because it can never be a negative number for real numbers, okay। So ये स्क्वायर टर्म है, इसलिए इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 ही है, ओके। सो रेजोनेंस होने के लिए XC माइनस XL होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, which means XC should be equal to XL, right? Now we remember what is XC and what is XL, okay।
XC is reactance because of capacitance, which is 1 by omega C. And XL is reactance because of inductance, which is omega L. Omega L. Okay, so now let's put this back. We will get 1 by omega C is equal to omega L, which implies omega square is equal to 1 by LC, which means omega is equal to 1 upon under root LC. ओके, सो ये जो हमारा रिजल्ट है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, ये हमें इस सर्किट की क्या क्या चीजें बता रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता रहा है इस सर्किट की क्या है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो यही इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी है, या फिर इसको हम टर्म यूज करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे तो करंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो हो गई 0, तो इसको हटा दो, और अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर इज R, तो जो करंट है ओके इज इक्वल टू VM by R. Okay, now this M means the maximum value of the current in the waveform, right? But we are talking of maximum value across all values of omega. So I can put a superscript here if I want I max. It's just optional. You can put it there, okay? Just to ensure that we are talking about the maximum current is equal to VM by VR. Now, when was this the current in a circuit? मीनाक्षी बताएंगे आप मुझे कि कब करंट VM by R होता था, कौन से सर्किट में होता था VM by R? सर रेजिस्टेंस में, केवल रेजिस्टिव सर्किट में होता था, जिसमें ना L हो, जिसमें ना C हो। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमने अभी अभी सर्किट देखा उसमें रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, लेकिन जब वोल्टेज, जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे सोर्स की ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC लगा देते हैं, तो इट इज एज गुड एज कि कैपेसिटर और इंडक्टर है ही नहीं, क्योंकि जो इंडक्टर का इफेक्ट है वो कैपेसिटर नलीफाई कर देता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं और ये एक रेजिस्टिव सर्किट जैसा बन जाता है एट द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस। ओके, और रेजोनेंस करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी बदलनी है। सर्किट जो ये सोर्स है, ये ऐसी सोर्स होनी चाहिए जिसकी हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकें, और जब हम उसको इस फ्रीक्वेंसी पे ले आते हैं रेजोनेंस हो जाता है, करंट हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, कैसे करेंगे ये देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि हमारे को वैल्यू ऑफ L दी हुई है, C दी हुई है, R दी हुई है। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, ओमेगा नॉट निकालना है। बोलिए कैसे करेंगे सर? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। वेरी वेरी गुड। ओके, so what are we going to do here? We are going to just put these values. Okay, the only thing you have to take care of, right, in such questions is that, you know, the first thing is that never miss out these small things. Okay, so what is M? M is 10 raised to the power minus 3. What is N? 10 raised to the power minus 9 nano.
Okay, so other than that there is nothing to be done in this, right? So it is 1 into 10 raised to the power minus 3 into 1 into 10 raised to the power minus 9 is equal to 10 raised to the power minus, okay, is equal to 10 raised to the power 6 radian per second. Okay, so this result, remember, is in radian per second. That is the unit of omega. If the question is, sometimes the question could be about frequency rather than angular frequency. In that case, you will have to divide it by 2 pi. Okay, but here we only have to find omega naught. Okay, so we don't have to do that. Okay, so these are some small things we have to take care of. Now the next part of the question is maximum current, the peak current in a circuit when a sinusoidal voltage of peak value this is applied. So resonating circuit में क्या होता है current का value? मीनाक्षी? मीनाक्षी? Yes, sir. रेजोनेटिंग सर्किट में करंट का क्या वैल्यू होता है? V by R, simply V by R, right? That वो रेजिस्टिव सर्किट जैसा हो जाता है. तो बस इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है. ये 100 लगाया, नीचे जो है रेजिस्टेंस लगा दीजिए. 100 ओम, ये वोल्ट है, ये ओम है, तो यूनिट की आएगी हमें 1 एम्पियर. इतना सिंपल. ठीक है, चलिए. Yes, sir. ठीक है, अब हमने रेजोनेंस समझ लिया, राइट? तो अभी हम रेजोनेंस को थोड़ा ग्राफिकली भी देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे. मीनाक्षी अपने को म्यूट कर लीजिए. अब जो है ये दो चीजें हम देखेंगे यहाँ. एक तो कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, और ये रेजोनेंस का ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं क्या. तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे हमने फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दी. तो जो हमारे पास सर्किट था उसमें हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जा रहे हैं 0 से. ठीक है, और एक एमीटर लगा के उसमें हम करंट की रीडिंग लेते रहे. ठीक है, तो उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें ये ग्राफ मिल गया, हाउ द करंट वेरीज विद द चेंज इन ओमेगा. During all this time we are not changing anything in the circuit. We are also not changing the value of Vm. वोल्टेज को कभी चेंज नहीं कर रहे हैं. हम केवल जो साइन ओमेगा टी वोल्टेज का था, इस ओमेगा को केवल चेंज कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं. ओके, लेकिन हम पाते हैं करंट चेंज होता जाता है एलसीआर सर्किट में. ओके, दिस इज फॉर एन एलसीआर सर्किट. तो अब आप देखिए कि ये अलग अलग एलसीआर सर्किट है. ये एक एलसीआर सर्किट है, ये दूसरा एलसीआर सर्किट है, ये एक और एलसीआर सर्किट है. मतलब कि जिनमें एल, सी और आर की वैल्यूज अलग अलग हैं. एक्चुअली आर की वैल्यू इन सब में सेम ही है जिस तरह से मैंने ड्रॉ की है. ओके, इनमें एल और सी की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन क्या चीज सेम है? इन सब का पीक करंट एक ही पॉइंट पे आ रहा है, at omega is equal to 100 रेडियन पर सेकेंड. पीक करंट एक ही पे आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं इन सर्किट का क्या सेम है, चाहे एल और सी अलग हो? मीनाक्षी क्या बोल सकते हैं, क्या सेम है इन सब सर्किट्स का? इन सब का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, इन सब का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि ओमेगा नॉट सेम है. ओके, इसीलिए वो एक ही पॉइंट पे पीक होते हैं ये सब सर्किट्स. लेकिन अब हम देखते हैं, चाहे ओमेगा नॉट सेम हो, इस वाले में करंट धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है, और जो बिल्कुल अंदर वाला है इसमें एकदम शार्प करंट में चेंज आता है. तो यानी कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इसकी बहुत अधिक है. ओके, सो ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. ओके,
मान के चलिए ये हमारा रेजोनेंस का ग्राफ है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन करने के लिए हम इसकी मोटाई लेंगे कि ये कर्व कितना मोटा है, लेकिन किस पॉइंट पे लेंगे? यहाँ पे तो हमारा आई मैक्स है कि जब करंट आई मैक्स से √2 टाइम्स छोटा हो जाए, वहां पे इसकी क्या चौड़ाई है हम वो देखेंगे। उस चौड़ाई को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। और बैंडविड्थ जितनी कम होती है उतना ज्यादा रेजोनेंस शार्प होता है, यानी कि एकदम से करंट बढ़ता है। ओके, तो ये हम आई मैक्स बाय √2 पे क्यों लेते हैं? ये √2 जैसी स्पेशल फिगर यहाँ क्यों है? उसका रीजन ये है कि रेजोनेटिंग सर्किट है, तो पावर क्या होगी? I²R, क्योंकि ये तो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अगर Im बाय √2 करंट होगा तो पावर कितनी हो जाएगी? बाय 2। ओके, सो जो पावर है वो हाफ हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है जब पावर हाफ पे आ जाती है, इसलिए हम आई मैक्स बाय √2 तक उसकी चौड़ाई नापते हैं, ठीक है। और ये हम किस तरह से नापते हैं? हम ये मान लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है कर्व, एक्चुअली होता नहीं है लेकिन मानते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है। और ये इस डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो डेल्टा ओमेगा है, और दूसरी डायरेक्शन में भी सिमेट्रिक होने की वजह से डेल्टा ओमेगा है। जो टोटल बैंडविड्थ हो गई फिर वो 2 बार डेल्टा ओमेगा होने से 2 डेल्टा ओमेगा। ओके, सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। ये याद रखिएगा, 2 मत भूलिए। जब डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट भी करते हैं कभी या गिवन होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके बैंडविड्थ आती है। ओके, चलिए, डिराइविंग द वैल्यू ऑफ शार्पनेस। तो हम शार्पनेस की वैल्यू कैसे डिराइव करें? ओके, शार्पनेस की वैल्यू डिराइव करना एकदम सिंपल है। हम क्या देखते हैं कि हमें Im की वैल्यू तो पता है, राइट, एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। वो क्या होती है? Vm बाय R। ये है एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। अब फ्रीक्वेंसी मान के चलिए हम फ्रीक्वेंसी ω1 ले लेते हैं, जिसपे कि हाफ हो जाती है इसकी पावर, और करंट Im बाय √2 हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली वी आर कमिंग टू एन एंड, सो I will not be able to finish this derivation now. We'll pick up from here the next lecture, and I will complete the theory in the next lecture. Okay, so please attend it, and then we will do some questions, okay, before we start with the next chapter. Okay, so thank you, bye bye.